Okay, so we have already completed residential status and scope of total income. Now we will be moving on to heads of income. There are five heads of income, that is income from salary, income from house property, profits and gains of business and profession. Then we have capital gain and income from other sources. What happens in income from salary when there is employer and employee relationship? Employer and employee relationship, anything, any emoluments or benefits which passes, cash or non-cash, which passes from employer to employee, will be taxable under this head, income from salary. So what is important here? There should be employer employee relationship or master servant relationship should be established before taxing anything under this head, income from salary. Then we have income from house property. What is taxed under income from house property? Owner of the house property is taxed under income from house property, and on which income? It will be rent income. Okay, so there are other rent income also. Rent from immovable property, rent from movable property is also there, so it will not be taxable here. Subletting is non-taxable here, means under income from house property. Subletting is taxable under income from other sources. What is subletting? आपने किसी से रेंट पे लिया और आपने किसी और को रेंट पे दे दिया, मीन्स यू आर नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो टर्म लिख दिया है, रेंट होना चाहिए और वो किसका होना चाहिए? रेंट इनकम ऑफ ओनर. ठीक है, तो उसको लेटिंग बोलते हैं, एंड लेटिंग इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. देन वी हैव बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज द थर्ड हेड. ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या होता है? वी विल बी deeply discussing on this topic when we will cover income from business and profession. Then we have capital gain. Capital गेन में आपका कैपिटल एसेट, दैट इज सेल ऑफ कैपिटल एसेट, कवर हो जाता है. सेल ऑफ कैपिटल एसेट, यहाँ पे क्या कवर होते हैं? शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स. ठीक है, एंड दिस इज योर रेसिजुअल हेड. ठीक है, रेसिजुअल हेड का मतलब पता है, जो बचा कुचा होगा वो यहाँ पर चला जाएगा. ठीक है, so these are five heads of income, and now we will start with income from house property. Okay, income can be charged under this head only if there is an employer employee relationship between the payer and the payee. So who should be payer? Payer should be an employer. And who should be payee? Payee should be an employee. When this relationship is established, then anything which passes from employer to employee, any benefit, maybe cash or non-cash, which passes from employer to employee will be taxable under this head. अगर आपका employer employee relationship मिल गया, ठीक है, तो जो भी इनकम पास होगा एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय की तरफ, ठीक है, चाहे वो गिफ्ट ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो गिफ्ट ही क्यों ना हो, वो भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा, चाहे वो कैश हो चाहे वो नॉन कैश हो. बेनिफिट विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड. ठीक है, सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, एडवांस ऑफ सैलरी, लीव इनकैशमेंट, कमीशन, परक्यूजिट्स, सैलरी इन लियो, एंड देन इन एडिशन द रिटायरमेंट बेनिफिट्स. यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ लिखा है, प्रॉफिट परक्यूजिट्स इन लियो ऑफ, रुक जाओ, हाँ, परक्यूजिट्स के बाद ये कुछ गड़बड़ है.
हाँ, और इन एडिशन टू सैलरी एनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, नाउ दिस स्टेटमेंट इज ओके। ओके, what happens to salary of partner, since partner is not an employee of the business, partner is the owner of the business। ठीक है, और जिसका ओनर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, he is taxable under income from business। so salary of the partner is taxable under income from business, it is non taxable, it is not taxable under income from salary। क्यों सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती पार्टनर की सैलरी? बिकॉज पार्टनर इज नॉट एन एम्प्लॉई, और यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना जरूरी है। ठीक है, सेम गोज विथ एमपी एंड एमएलए। ठीक है, एमपी एंड एमएलए इज नॉट द एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसीलिए उनका भी कहाँ पर जाता है? अदर सोर्सेस में आता है, वो तो ओनर भी नहीं है ना। तो यहाँ पर कहाँ पे टैक्सेबल होगा? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। डायरेक्टर्स फीस इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो डायरेक्टर्स फीस और डायरेक्टर्स जो होते हैं मोस्टली उनका रिलेशनशिप स्टैब्लिश जब नहीं होता है तो इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ओके। so these are certain things which you need to remember। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत आती है। ठीक है, सैलरी में इंक्लूड वेजेस, एन्यूटी। वेजेस का मतलब तो आपको पता है, वे डिफरेंशिएट बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। सो यहाँ पे वेजेस और सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो सैलरी में वेजेस को इंक्लूड करेंगे। एन्युटी इज समथिंग विच इज कमिंग एनुअली। तो एन्युटी इज द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म एनुअल। तो एन्युटी मीन्स एनुअल इनकम। पेंशन आपको पता है, जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है तो देयर आफ्टर यू विल बी गेटिंग योर पेंशन। ग्रेचुइटी जरूरी नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद ही मिले। ठीक है, आपके ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑल्सो यू मे गेट ग्रेचुइटी। ठीक है, ग्रेचुइटी इज द टर्म डिराइव फ्रॉम द वर्ड ग्रेटिट्यूड, मीन्स यू आर अप्रिशिएटिंग समवन। और जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो आप पैसे देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेचुइटी। ठीक है, सो ग्रेचुइटी आपको लमसम अमाउंट मिलता है ग्रेचुइटी का, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी मिलता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी मिलता है। सो यू कैन अप्रिशिएट एनी टाइम, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रेचुइटी। फीस, कमीशन, परक्यूजिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इधर सैलरी मिसिंग है। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। ठीक है, सो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। परक्यूजिट यू मस्ट नो, आपने ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन किया है, तो परक्यूजिट इज नॉन कैश बेनिफिट। ठीक है, जैसे अलाउंसेस होता है, अलाउंसेस आपका कैश में आता है, बट परक्यूजिट इज नॉट योर कैश बेनिफिट, इट इज नॉन कैश बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, आपको फ्री में गाड़ी मिल गई है एम्प्लॉयर से, ठीक है, विथ ड्राइवर। ठीक है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया आपके एम्प्लॉयर ने, दीज आर परक्यूजिट्स। एम्प्लॉयर इज नॉट गिविंग एनीथिंग इन कैश। ठीक है, द पर्सन इज गिविंग इन काइंड। ठीक है, और काइंड में आपके लिए अदर देन कैश आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो आपका खुद का लाइफ इंश्योरेंस उसने पे कर दिया, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, आपको कुक फ्री में मिला है। ठीक है, गार्डनर फ्री में मिला है, वॉचमैन फ्री में मिला है, किससे? एम्प्लॉयर से। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स किस में टैक्सेबल होंगे? ये परक्यूजिट बोल के आप सैलरी में इसको टैक्स करेंगे। ठीक है, एडवांस सैलरी मतलब टाइम से पहले आपने ले लिया है। ठीक है, व्हेन इट इज लोन अगेंस्ट सैलरी या एडवांस अगेंस्ट सैलरी। ठीक है, तो ये लोन अगेंस्ट सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी जो होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है। व्हेन इट इज एडवांस सैलरी तो ही आपको क्या करना है? इधर पे टैक्सेबल करना है। तो लोन इज नॉन टैक्सेबल। लोन आपका कैसे इनकम हो सकता है ना? तो कभी कभी आता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी आता है, कभी 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 आता है लोन अगेंस्ट सैलरी आता है, या लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर आता है, तो ये टैक्सेबल नहीं है। एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब लोन होता है। ठीक है, तो ये लोन जो होता है ये टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन एडवांस सैलरी है। ठीक है, तो एडवांस सैलरी आप टैक्सेबल कर सकते हैं। एडवांस सैलरी मतलब टाइम से पहले रिसीव किया है। लीव इनकैशमेंट, आपकी लीव के बदले में आपको कैश मिलेगा। ठीक है, आपकी लीव इन कैश हो रही है, तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आपका एनुअली कुछ ना कुछ क्या होता है?
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आता जाता है। वैसे पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है, कुछ अमाउंट उसका टैक्सेबल होता है, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ट्रांसफर्ड बैलेंस टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, आपने अगर कुछ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर किया है, लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स होती है, वो आप देखेंगे बाद में तो आपको समझ जाएगा। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं सैलरी के लिए, कि सैलरी इनकम इज टैक्सेबल चार्जेबल, salary income is chargeable to tax on due basis or receipt basis whichever is earlier। तो क्या आप अरियर्स सैलरी को भी टैक्स करते हैं? यस। एडवांस को भी करते हैं? यस। ठीक है। और अगर आपकी सैलरी नहीं मिली तो भी आप 12 से ही मल्टीप्लाई करते हैं सैलरी को, मतलब एक साल की ही सैलरी आप कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय को 9 मंथ्स की सैलरी मिली है, लेकिन फिर भी आप मल्टीप्लाई करने के टाइम पे इंटू 12 ही करते हैं। क्यों? क्योंकि 3 महीने की सैलरी भले ना मिली हो, लेकिन वो ड्यू बेसिस पे क्या होगी? टैक्सेबल हो जाएगी। तो जो भी आपका पहले आ गया, ठीक है, आप अरियर्स भी टैक्सेबल रखते हैं, आप एडवांस भी टैक्सेबल रखते हैं, टाइम के पहले मिलेगा तो भी टैक्सेबल है, टाइम के बाद मिलेगा तो भी टैक्सेबल है, लेकिन जो भी पहले आ जाएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। तो सैलरी के केस में सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस मतलब अर्नड बेसिस, ठीक है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन अर्न बेसिस और रिसीव बेसिस। तो आपको अर्न करने में और रिसीव करने में आपको डिफरेंस तो ऑलरेडी पता होगा कि अर्न करने का मतलब क्या होता है। फॉर द मंथ ऑफ फॉर दिस मंथ, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है, या अब तक मैंने 14 डेज की सैलरी जो है वो अर्न कर लिया है, बट रिसीव नहीं हुई है ना। और रिसीव का मतलब क्या होता है? एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे मे बी नेक्स्ट मंथ मुझे उसकी क्या होगा? सैलरी मिलेगी, तो उसको रिसीव बोलते हैं, है ना, रिसीव बेसिस बोलते हैं। लेकिन दोनों में से जो भी अर्ली हो जाता है वो टैक्सेबल हो जाता है। आपकी सैलरी ड्यू हुई, मतलब आपने अर्न कर लिया फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, आपकी मिली ही नहीं सैलरी, तो भी वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि ड्यू तो हो गई, आपने अर्न तो कर लिया है। तो या तो अर्न बेसिस पे या तो रिसीव बेसिस पे, जो भी पहले आ जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। यही रीजन है कि आपका अरियर्स जो सैलरी का है वो भी टैक्सेबल होता है, आपका एडवांस जो है वो भी टैक्सेबल होता है। ड्यू बेसिस हो, रिसीव बेसिस हो, दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा आप क्या करेंगे? टैक्स उसको कर देंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज मस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई टू टैक्स द इनकम अंडर दिस हेड। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप मिलना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे टैक्सेबल कोई भी चीज कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल ड्यूरिंग द ईयर शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखो लिखा हुआ है आपके ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, जितना भी ड्यू है वो भी आप उसके ऊपर भी टैक्स आप ले लेंगे, ठीक है, वेदर पेड और नॉट, टू दी टैक्स पेयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। तो जितना भी अर्न किया है सारा आप ले लेंगे, इंक्लूडिंग फॉर्मर एम्प्लॉय, मतलब इससे पहले का कोई एम्प्लॉयर रहेगा, मतलब हो सकता है कि आपने बीच में जॉब छोड़ा है, दूसरा जॉब ज्वाइन किया है, तो फॉर्मर एम्प्लॉयर का भी यहाँ पे सैलरी यहाँ पे टैक्सेबल होगी। सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर, तो सैलरी ड्यू, सैलरी पेड, ठीक है, अरियर्स सब टैक्सेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। इन केस सैलरी इज रिसीव्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, दीज आर एडेड बैक टू गेट फुल्ली सैलरी, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि आपकी सैलरी नेट है, कुछ चीज उसमें से डिडक्ट हुआ है, तो आप क्या करेंगे? वापस से इसको ऐड करेंगे। तो सैलरी शुड नेवर बी नेट, इट शुड बी ग्रॉस। तो नेट कैसे हो सकता है आपकी सैलरी में से ओन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट, मतलब प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन निकाला होगा, टीडीएस निकाला होगा, रीपेमेंट ऑफ लोन निकाला होगा, एलआईसी डिडक्ट किया होगा, ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का कुछ अमाउंट उसमें से डिडक्ट हो सकता है, रेंट ऑफ हाउस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर उसमें से डिडक्ट हो सकता है, कोई भी चीज आपकी सैलरी में से कुछ भी डिडक्ट हुआ है तो आपको वापस से उसको ऐड करना पड़ेगा। योर सैलरी शुड बी ग्रॉस, नेट सैलरी है तो उसको ग्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। सैलरी नेट टैक्सेबल नहीं होती है, ग्रॉस टैक्सेबल होती है। तो आपको अलाउड नहीं है सैलरी में से कुछ भी डिडक्ट करना, और अगर कुछ डिडक्टेड है तो वापस से ऐड कर दो, सो दैट दीज आर एडेड बैक टू गेट दी टू गेट फुल सैलरी। तो दिस इज फुल सैलरी। अरे बाबा, अच्छा इधर है, ठीक है। सैलरी में क्या क्या चीजें आती? वेजेस विच इज फुल्ली टैक्सेबल, एन्युटी विच इज फुल्ली टैक्सेबल,
ग्रेचुइटी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे उसको ट्रीट करना है। ग्रेचुइटी लाइफ टाइम में रिसीव है तो फुल्ली टैक्सेबल है। ग्रेचुइटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इसीलिए इधर पे लिखा है इट हैज बीन ट्रीटेड सेपरेटली। इसका ट्रीटमेंट ही एकदम अलग है। ठीक है, एनी फीस फुल्ली टैक्सेबल, कमीशन फुल्ली टैक्सेबल, बोनस बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस, तो बोनस डिक्लेयर्ड इज नॉन टैक्सेबल। ठीक है, बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस। बोनस डिक्लेयर्ड अगर आपके क्वेश्चन में है, आया था एक बार एग्जाम में, बोनस डिक्लेयर्ड करके लिखा हुआ था, आप लोगों ने दिख लिया उसको, टैक्सेबल कर दिया, तो बोनस डिक्लेयर्ड इज नॉन टैक्सेबल। बोनस इज टैक्सेबल ओनली ऑन रिसीव बेसिस। अगर मिला है तो बोनस टैक्सेबल है, बोनस का सपना टैक्सेबल नहीं है। बोनस डिक्लेयर्ड इज नॉन टैक्सेबल। ठीक है, तो बोनस शुड बी रिसीव्ड, तब वो टैक्सेबल होगा। परक्यूजिट है, अब उसको भी आपको सेपरेटली ट्रीट करना पड़ता है। हर परक्यूजिट का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। कुछ परक्यूजिट फुल्ली टैक्सेबल होता है, कुछ परक्यूजिट कुछ लेवल तक के टैक्सेबल होता है, कुछ परक्यूजिट पूरा तरह से एग्जम्प्ट भी होता है। ठीक है, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, मतलब प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी भी बताया है कुछ एग्जाम्पल उसके, कि आपको सैलरी की जगह पे कभी कभी कुछ बेनिफिट मिलता है, जैसे कॉम्पनसेशन हो गया। आपका कॉम्पनसेशन है, टर्मिनेट हो जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट, तो आपको कॉम्पनसेशन मिलता है। तो सब क्या है, आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है। सैलरी इनकैशमेंट भी टैक्सेबल है, एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल है, अरियर्स ऑफ सैलरी भी टैक्सेबल है। ठीक है, कुछ अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, कभी पूछा नहीं है बट याद रखो, अगर याद रह सकता है तुम लोग को जितना। फॉरेन अलाउंसेस गिवन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, HRA गिवन टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ये जो होता है, ये अलाउंसेस जो है ये एग्जेम्प्ट है, मतलब बाकी सारे एग्जाम जो अलाउंसेस होते हैं सारे टैक्सेबल होते हैं। बाकी सारे अलाउंसेस आपके टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि डियरनेस अलाउंस होता है, एडिशनल DA। ठीक है, और ये सब चीजें क्या है, आपकी टैक्सेबल है। डियरनेस अलाउंस किसको बोलते हैं, अगर आपको आपकी सैलरी के, मतलब आपको अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए कोई अलाउंसेस दिया जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डियरनेस अलाउंस बोलेंगे, जिसको DA बोला जाता है। ठीक है, सिटी कॉम्पनसेशन अलाउंस, अगर आप अपनी सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में जाते हैं, ठीक है, तो आपको उसके लिए अलाउंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। ठीक है, देन वी हैव कैपिटल कॉम्पनसेटरी अलाउंस, अगर आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। देन लंच अलाउंस होता है, देन टिफिन अलाउंस होता है, देन मैरिज या फैमिली अलाउंस होता है। आप किसी भी चीज के आगे वर्ड अलाउंस ऐड करके अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको देंगे किसी चीज के लिए, वो यूज किसी चीज के लिए करेगा, कोई पंगा नहीं है इसमें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे HRA मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस, मैं अपने उससे रेंट पे नहीं करते हुए मैं कुछ और करता हूँ तो अलाउड है। ये सिर्फ नाम होता है अलाउंसेस का, ये आपको कैश में मिलता है आपकी सैलरी में, और आपकी सैलरी में ही क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, जब आपका फुल सैलरी आता है तो उसके अंदर नहीं लिखा होता है कि DA है, ये क्या है, बट सैलरी स्लिप पे जरूर लिखा होता है कि एम्प्लॉयर ने आपको क्या क्या दिया है। अगर आप सैलरी स्लिप देखेंगे तो आपकी सैलरी स्लिप पे रहेगा कि ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी है। ठीक है, फिर उसमें से अलाउंसेस होंगे अलग अलग, तो आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं पता नहीं। ठीक है, नाइट शिफ्ट अलाउंस भी मिलता है नॉर्मली, वेरिएबल अलाउंस करके आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जनरल अलाउंसेस भी मिलते हैं। ठीक है, तो अलाउंसेस आपकी सैलरी में ऐड होके आपके पास आ जाते हैं। आपकी ग्रॉस सैलरी भले कम हो, अलाउंसेस वगैरह क्या करते हैं, आपकी सैलरी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, बट वो सिर्फ एक नाम के लिए, वो एक एडजस्टमेंट होता है, बट होता तो आपकी सैलरी ही है। अलाउंसेस आपकी सैलरी के साथ आते हैं कभी भी। ठीक है, मेडिकल अलाउंस मिल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर अलाउंस मिल सकता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ऐड करेंगे उसको ऊपर इनकम में, और उसके बाद डिडक्शन किसको मिलेगा, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, आइदर इट इज 5,000 और 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए, कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, और कितना मिलता है, लोअर ऑफ दी फॉलोइंग, दैट इज 5,000 और 50% ऑफ द बेसिक सैलरी और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, इसमें से कुछ भी आप इन तीनों में से जो भी लोअर रहेगा वो आपको मिल जाएगा। किसको मिलेगा, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। नॉन गवर्नमेंट के केस में क्या करना है, सिर्फ इनकम ट्रीट करके उसको छोड़ देना है, डिडक्शन में कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस कौन कौन से, जैसे HRA कुछ लेवल तक के एग्जेम्प्ट होता है।
ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड इफ रिसीव्ड बाय दी, हाँ अगर एचआरए किसका है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है तो। फुल्ली टैक्सेबल इफ इट इज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई हु इज लिविंग इन हिज ओन हाउस। बताओ आपका एचआरए जो है वो किस लिए मिला है, ताकि आप हाउस का रेंट पे कर सको, है ना। तो अगर आप अपने हाउस का रेंट पे करेंगे तो आपका हाउस का रेंट उसमें से माइनस होगा और जितना बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने खुद के हाउस पे रहते हैं, ठीक है, तो आप कैसे क्लेम करेंगे एचआरए का बेनिफिट, मतलब एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करेंगे। तो एचआरए टैक्सेबल है, एचआरए में से आप माइनस क्या करते हैं, क्योंकि एचआरए दिया किस लिए है आपको, ताकि आप रेंट पे कर सके। तो जब आप खुद के घर में रहते हैं तो आप रेंट थोड़ी ना पे करते हैं। तो इस केस में अगर आप खुद के घर में रह रहे हैं तो एचआरए क्या है, फुल्ली टैक्सेबल होगा उस केस में। एग्जेम्प्टेड अप टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको कभी पढ़ने की वैसे जरूरत होती नहीं है, बट एक्चुअल रेंट 10% of the salary, 40% of the salary in ordinary town, 50% of the salary in मुंबई कोलकाता। मतलब अगर मेट्रो सिटी है तो 50% ऑफ दी जो आपकी सैलरी होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। ये सब के ऊपर कभी आपको कैलकुलेशन आता नहीं है, तो आप ये सब चीज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे भी अलाउंसेस है जहां से आप एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं एज एन एग्जेम्पशन, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस है, कन्वेंस है, ट्रैवलिंग है, ठीक है। इस जगह से आप क्या कर सकते हैं, अपना एग्जेम्पशन, मतलब कुछ एक्सपेंसेस किया है यूनिफॉर्म के लिए या ट्रैवलिंग के लिए, तो आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो अलाउंसेस है जहां से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, ठीक है। अगर गलती से भी, याद रखना, कभी एक बार मैंने देखा है एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया था और वहां पे दिया था कि एक्चुअल एक्सपेंसेस एंटरटेनमेंट पे इतना है, माइनस मत कर देना, क्योंकि हर अलाउंसेस में से आप एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इन्हीं अलाउंसेस में से आप एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हो। मे बी यूनिफॉर्म अलाउंस, मे बी कन्वेंस अलाउंस, मे बी ट्रैवलिंग अलाउंस, इन्हीं में से आप क्या करेंगे, सिर्फ एक्सपेंसेस को माइनस कर पाएंगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू दी परक्यूजिट। एग्जेम्प्ट परक्यूजिट है कुछ आपकी, जैसे लीव, ट्रैवल कंसेशन, कंप्यूटर, लैपटॉप मिला है आपको, ऑफिशियल रिफ्रेशमेंट अगर आपको मिला है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछ लिया था, रिफ्रेशमेंट ऑफिस आवर्स के टाइम पे, ठीक है। ये लैपटॉप वगैरह कभी पूछा नहीं है, लेकिन अगर मिला है तो भी एग्जेम्प्ट है आपके लिए। पेमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज के लिए अगर आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के लिए पे कर रहा है तो भी एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। फ्री टेलीफोन, मोबाइल वगैरह दिया है तो भी क्या होता है, ये कभी पूछा नहीं है बट ये सब आ गया है। रिफ्रेशमेंट आया है एग्जाम में, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह आया है, अगर एम्प्लॉयर आपके लिए करता है क्या, ठीक है, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ये परक्यूजिट जो है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। देन मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड जितनी भी परक्यूजिट होती है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। टैक्सेबल परक्यूजिट में बहुत सारी चीजें आती हैं, मे बी आपको फ्री में घर मिला है, मोटर कार मिला है, एजुकेशन फैसिलिटी के लोन में आपको कुछ कंसेशन मिला है, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट है तो 15,000 के ऊपर, ठीक है। अगर आपने समझो कोई मेडिसिन वगैरह ले आया या मेडिकल एक्सपेंसेस किया है और आपका एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स करता है, ठीक है, तो वो कितना एग्जेम्प्ट होगा, मतलब अप टू 15,000 तक के वो एग्जेम्प्ट रहता है, उसके बाद वो टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। देन सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये सब टैक्सेबल है, ठीक है। रिसिप्ट्स आर इंक्लूडेड अंडर दी हेड सैलरी बट एग्जेम्प्टेड, ठीक है। जैसे ग्रेचुटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है ग्रेचुटी। कब, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो यहाँ पे लिख लेना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ग्रेचुटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। फॉर एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, अभी अदर एम्प्लॉय के केस में आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर वो कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है तो इफ द पर्सन इज नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट, तो दो पार्ट में आपका क्या हो गया, एम्प्लॉय डिवाइड हो गया। अगर कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है तो मैक्सिमम 10 लाख, लास्ट ड्रॉन सैलरी का 15 डिवाइड बाय 26, कंप्लीटेड सर्विस, उसको राउंड अप करना है, 7 मंथ्स रहेगा या फिर उससे ज्यादा रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसको राउंड अप करेंगे। दिस ऑल थिंग्स यू हैव ऑलरेडी लर्न, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी था इनकम फ्रॉम सैलरी में कि मैक्सिमम कितना है 10 लाख।
जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं और डिटेल में आपको बता दूंगा। फिलहाल हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी पार्ट में आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि अगर ग्रेचुटी एक्ट के थ्रू कवर्ड होगा तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज 10 lakhs, या लास्ट ड्रॉन सैलरी का 15 डिवाइड बाई 26, 15 डिवाइड बाई 26 मतलब हाफ को बोला जाता है, ठीक है, वो 4 लीव्स को निकालने के बाद, अदरवाइज वो हाफ मंथ ही काउंट होता है, 15 डिवाइड बाय 30 होता है, नीचे में देख सकते हो आप 15 डिवाइड बाय 30। लेकिन जो कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट होते हैं उनको हॉलीडेज का भी बेनिफिट मिलता है, तो 15 डिवाइड बाय 26 उनके केस में आपको लेना है। कंप्लीटेड ईयर्स है, तो कंप्लीटेड ईयर्स लेने के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि अगर कोई 7 मंथ या उससे ज्यादा का है तो उसको भी आप क्या कर देंगे, उसको भी 1 और साल बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर किसी की सर्विस 26 years एंड 7 मंथ है तो आप उसको 27 years कर सकते हैं। 15 years एंड 6 मंथ है तो आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम 7 मंथ्स या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, तब आप उसको क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे मंथ्स को। तो अगर 10 ईयर्स, अगर किसी ने 10 ईयर्स काम किया है, 10 years and 7 month, तो आप उसको 11 मंथ काउंट कर सकते हैं अगर वो कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है तो, ठीक है। अदरवाइज अगर वो 6 मंथ है या 5 मंथ है या 4 मंथ है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीटेड ईयर्स यहाँ पे आपको लेने होते हैं और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड यहाँ पर आ जाएगा। नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है तो सेम फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे एवरेज 10 मंथ सैलरी लेना पड़ता है, 15 डिवाइड बाय 30 लेना पड़ता है और कंप्लीटेड ईयर्स ओनली। तो यहाँ पर अगर 26 years एंड 11 मंथ है तो भी आप 26 years ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे राउंड अप का कोई पंगा है ही नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स ही आपको लेने पड़ेंगे। एक्चुअल विच एवर इज लोअर, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा वो यहाँ पर मिल जाएगा अगर नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी है, इन तीनों में से लोअर यहाँ पे मिल जाएगा अगर कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है, ठीक है। पेंशन का केस एकदम सिंपल होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो होता है, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की, मतलब अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल। कम्यूटेड पेंशन की हम लोग बात करें तो कम्यूटेड पेंशन मतलब क्या होता है, लमसम पेंशन जो उसको मिलता है उसको कम्यूटेड पेंशन बोला जाता है, ठीक है। अनकम्यूटेड पेंशन किसको बोलते हैं, जो मंथली रिसीव होता है उसको अनकम्यूटेड पेंशन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको कम्यूटेड पेंशन मिला है तो पूरी तरह से एक्सेम्प्ट है। अगर कोई बंदा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको ग्रेचुटी मिला है तो 1/3 एग्जेम्प्ट होगा फुल वैल्यू का, और अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुआ है तो हाफ ही मिलेगा उसको, फुल मतलब फुल कम्यूटेड वैल्यू का हाफ ही उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी केसेस आप लोगों ने, पेंशन से रिलेटेड है, बहुत सिंपल सा केस होता है। गवर्नमेंट के केस में फुल्ली एग्जाम, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट के केस में अगर ग्रेचुटी मिला है तो 1/3, ग्रेचुटी नहीं मिला है तो हाफ। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन जो होता है VRC, वो अप टू 5 लाख का होता है, एग्जाम्प्ट होता है। यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स डाल दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो हम लोग करेंगे डिस्कस इसके बारे में। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अलग से भी फॉरवर्ड किए हुए हैं और टेक्स्ट बुक से भी ये सारे क्वेश्चंस हैं आपको, ठीक है। सो गोइंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 6.1, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि डिडक्शंस कैसे आप लोग लेते हैं, ठीक है। ओके, सो आई विल टेक एन एक्सेल शीट नाउ। I will zoom it to a little. ओके, ये एक बॉक्स ले लेते हैं। आपको किसी चीज पे कोई क्वेश्चन रहे, कुछ पूछना है, सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने ऑलरेडी ये सब चीज देख लिया है, बट इफ इन केस अगर आपको कोई चीज समझना है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज तो प्रैक्टिकल आएगा तो चीजें आपको एक एक करके आपको पढ़नी है, कोई टू वे नहीं है वहां पर। ओके, एंड probably college will be reopening in from next week I guess, ठीक है, from 20 it is going to reopen, तो मे बी आप लोगों को अब कॉलेज ही आके पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम,
This is income from salary. Okay. Now look at this question. I hope this is visible. Illustration number 6.1. Miss Komal, who is in government services, receives 50,000 per month as basic salary. So basic salary is always taxable. So I will write it as basic salary. So we are learning what? We are learning deduction. Okay. So we have three deductions now, and a standard deduction, then entertainment allowance, and we have professional tax. So we will be learning these three deductions now. Okay. So income from salary में basic salary आ गया. It says 50,000 per month. तो मैं 50,000 को into 12 कर दूंगा because per month है इसीलिए. So I'll write it as 50,000 multiply by 12. So मेरी annual salary कितनी हो जाती है? 6 lakh. Basic salary. Okay. Then rupees 5,000 per month as dearness allowance. So I am getting dearness allowance also. So dearness allowance. How much? It is 5,000 per month. So 5,000 into 12. Okay. So it is 5,000 into 12. Okay. Then we have dearness and 4,000 per month as entertainment allowance. So entertainment allowance का केस है कि आपको उसको इनकम में लिखना है पहले तो. Entertainment allowance. How much? It is 4,000 per month. So it is 4,000 into 12. Okay. So 4,000 into 12. 48,000. ठीक है. पीटी मिला है. पीटी तो डिडक्शन का काम है. कोई इनकम तो नहीं है उसमें. कुछ बोलना है? अनम्यूट किया है तो. Okay. Moving on. Now we will take the total of it, that is our gross salary. How much is our gross salary? It is 6 lakh plus 60,000 plus 48,000, which is coming to 7 lakh 8,000. That is our gross salary. Then we will have deductions. Under section 16. Deduction under section 16. So how many deduction we will be having? We will be having standard deduction. We will be having profession tax. We will be having entertainment allowance. Why entertainment allowance? Deduction किसको मिलती है? Government employee को. ठीक है. और ये government employee है. अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो सिर्फ दो ही डिडक्शन मिलती इसको, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड पीटी का. सिंस द पर्सन इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दिस पर्सन विल बी गेटिंग डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑल्सो. ठीक है. ये हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसके लिए वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा. ठीक है. बट स्टैंडर्ड डिडक्शन इज फिक्स्ड. किसी को पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है? देखिए जरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है सैलरी में? फिक्स्ड होता है. आई एम वेटिंग. स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है सैलरी का? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है? हाँ, मैंने नहीं सिखाया बट आप लोगों ने ऑलरेडी तो सीखा होगा ना. बीइंग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है सैलरी का.
Excuse me, sir. बोलो। So we have forgotten everything. Shall you repeat that once again? ओके, मैं तो बता ही रहा हूँ, सिंस दिस क्वेश्चन इज ऑन डिडक्शन ओनली, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस डिडक्शंस ओनली. ओके. ओके, so standard deduction is fixed. It is either 50,000. ठीक है, इट इज आइदर 50,000 और 7,08,000. अभी 7,08,000 क्या है, आपकी ग्रॉस सैलरी है. ठीक है, इट इज लोअर ऑफ 50,000 और 7,08,000, ऐसे आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन इज आइदर 50,000 और आपकी ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लोअर. तो यहाँ पे लोअर तो 50,000 है, इसलिए मैं 50,000 ले रहा हूँ. और मैक्सिमम टाइम आपको 50,000 ही लेना है, क्योंकि हमेशा आपका जो 50,000 होगा वो लोअर होगा. ग्रॉस सैलरी किसी की भी आज के टाइम पे 50,000 से कम तो होती नहीं. ठीक है, तो इन दैट केस आपको हमेशा याद रखना है मिनिमम इज 50,000 सर ऑल टाइम. इट इज मैक्सिमम 50,000 बेटा. अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, 40,000 है, तो फिर भी आप यहाँ पे 50,000 लेंगे डिडक्शन में. 40 में से 50 को माइनस कर देंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा. तो आपको याद रखना है कि ग्रॉस सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सिंस माई ग्रॉस सैलरी इज 7,08,000 और 50,000, इट इज मैक्सिमम 50,000, इट इज नॉट मिनिमम. ओके, सो इट इज ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर. लेट मी नो अगर यहाँ पर कुछ डाउट है आपको तो. ओके, सो आई विल मूव फर्दर. प्रोफेशन टैक्स जितना आपने पे किया है उतना आपको मिल जाएगा. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट. आपने नहीं पे किया आपको नहीं मिलेगा. सो योर क्वेश्चन सेज कि आपने कितना पे किया है प्रोफेशन टैक्स, 2,500. तो आप 2,500 क्लेम कर सकते हैं. जितना आपने पे किया है वो आपके क्वेश्चन में दिया है तो आप क्लेम करेंगे, अदरवाइज नहीं क्लेम करेंगे. ठीक है, आप ड्यू बेसिस पे ये चीज क्लेम नहीं कर पाते हैं. प्रोफेशन टैक्स आपको पेड बेसिस पे ही क्लेम करना होता है. ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए आपको बाकी के दोनों डिडक्शन इजी है. आपको सिर्फ याद रखना है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है मैक्सिमम. पीटी जितना आपने पे किया है उतना आप क्लेम करेंगे. इसके लिए मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा. ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 इसके लिए मैं बना लेता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे मैं फाइंड आउट करता हूँ कि कितना हम लोग एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन दे सकते हैं. याद रखना ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तभी इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा. हर एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है. ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप सिर्फ किसके लिए करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए. ठीक है, इस ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है. अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो आप सिर्फ ये दो डिडक्शन लेते बस. कितना मिलेगा, लोअर ऑफ द फॉलोइंग. सर बताइए किस चीज का लोअर है. ओके, वी विल डिस्कस नाउ. इट विल बी मैक्सिमम ₹5,000. ठीक है, पहला पॉइंट है मैक्स ₹5,000. दूसरा है 20% ऑफ द सैलरी या फिर 1/5 ऑफ द सैलरी. ठीक है, या सैलरी डिवाइड बाय 5. ठीक है, तो बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं हम लोग. बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 5 कितना आता है बोलो. बेसिक सैलरी इज 6 लाख, और 6 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं 5 से, सो इट इज गोइंग टू बी 6 lakh divided by 5, it is 1,20,000. ठीक है, तो it is you say 1/5 of the basic salary है ना. 1/5 of the basic salary मतलब salary divide by basic salary divide by 5. एंड थर्ड पॉइंट है आपका एक्चुअल. ठीक है, एक्चुअल कितना है,
वो भी यहाँ पे दिख जाएगा, आपके क्वेश्चन में है, देख लो ऊपर 48,000। बताओ तीनों का लोअर कितना है, 5,000 या 1,20,000 या 48,000, तीनों का लोअर लेना है। तो कितना मिलेगा लोअर इनका, लोअर विल बी ₹5,000। करेक्ट, यही आपका डिडक्शन है। ठीक है, या तो मैक्सिमम 5,000, या तो सैलरी डिवाइड बाय 5, या फिर एक्चुअल जो कि क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है, तीनों में से क्या होगा लोअर आप क्लेम करेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस तो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। सो वर्किंग नोट नंबर 1, तीनों का लोअर क्या था 5,000, वो मैंने क्लेम कर लिया। ठीक है, ओके, दिस इज आवर इनकम फ्रॉम सैलरी, या फिर नेट सैलरी आप बोल सकते हैं, नेट इनकम फ्रॉम सैलरी, नेट इनकम फ्रॉम सैलरी, दिस इज ग्रॉस, और डिडक्शन माइनस करने के बाद यू विल गेट नेट, एंड दिस इज वर्किंग नोट ऑन अकाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन। ठीक है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, एंड लोअर हम लोग ने कैलकुलेट किया था, इट वाज 5,000। ओके, सो दैट्स देयर, और यहाँ पर भी इसका कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, सो मैं पेस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने भेजा हुआ है, उसके अंदर है उसका सोल्यूशन, सेम सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न, लेट मी नो। डिडक्शन समझ के आपको, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं एमकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। नो डिस्कशन, वो भी वो चीज जो कि तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। थोड़ा भूल गए हो यहाँ वहाँ समझ में आता है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो मूविंग ऑन, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। 6.2 मिल नहीं रहा क्यों? ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन। मैंने एक और नोट्स आपको फॉरवर्ड किया है, मैं ओपन करता हूँ वो नोट्स भी। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाँ, ओके, ये भी नोट्स मैंने आपको फॉरवर्ड किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पीएफ का जो है पूरा केस दिया हुआ है कि 12% के ऊपर एक्सेस जो है वो टैक्सेबल होता है, और उसका इंटरेस्ट 9.5 के एक्सेस जो है वो टैक्सेबल होता है। ये अब तक के सेम है, चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का वैसे है आपका नोट्स, लेकिन ये अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिफर कर सकते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन ही बना है वो इसी के केसेस पे बना हुआ है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर, ठीक है, अगर आपका 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपके पीएफ में, तो वो टैक्सेबल होता है। मतलब जितना एक्सेस वो क्लेम, जितना एक्सेस आपके लिए कंट्रीब्यूट करेगा वो सब क्या होगा, टैक्सेबल हो जाता है। तो ये एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन था, बाकी सारी चीजें इसके अंदर सेम है। ठीक है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, 12% के ऊपर जितना भी एक्सेस होता है, अगर एम्प्लॉयर आपके लिए करता है तो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट विच वॉज इन एक्सेस, तो जितना एक्सेस था, कितना एक्सेस था 1200, वो टैक्सेबल होगा।
तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है 12% से ज्यादा, ठीक है, तो बेनिफिट तो आपको ही मिलने वाला है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल होगा एज सैलरी। जितना भी आप 12% के ऊपर वो टैक्सेबल आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। सो लुक एट दिस क्वेश्चन, नाउ वी विल सॉल्व दिस। ओके, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, द आंसर की इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, तो मैं आपको आंसर वगैरह खाली उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे यहाँ पे। दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देन वी विल लीव। ओके, सो कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी ऑफ मिसेस सुनीता फॉर द असेसमेंट ईयर। तो आपका 21-22 रहेगा, तो यहाँ पे एक चेंजेस मार्क कर लेना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चेंजेस भी सिर्फ इतना ही है, आपको 21-22 उधर पे लिख लेना बस, और कुछ नहीं। ओके, now he is getting the Sunita is getting, she is getting salary at the rate of 9,000 per month, ठीक है। 2 मिनट, हाँ वॉइस बहुत है। Okay, so we will continue with this question now. Okay, so income from salary मैंने लिख लिया है, आई होप इससे ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी इज 9,000 पर मंथ है, तो मैं इसको इंटू 12 कर लेता हूँ। 9,000 इंटू 12, that is coming to 1,80,000. Okay, next item is इनकम टैक्स। तो कोई इनकम होता नहीं है, प्रोफेशन टैक्स भी कोई इनकम होता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वो आपका इनकम है। एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कितना एक्सेस किया है एम्प्लॉयर ने आपके लिए? 1200, ठीक है, 1200 आप टैक्सेबल रखेंगे, ठीक है। बोनस, बोनस पेड मतलब बोनस रिसीव, तो एम्प्लॉयर अगर पे करेगा तो एम्प्लॉय इसको रिसीव करेगा, तो बोनस रिसीव। बोनस का याद रखना है, बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, ठीक है, या फिर अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है तो डिक्लेयर अगर रहा तो बोनस वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। 14,600। देन वी हैव सैलरी ऑफ हाउस होल्ड एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, पर किस सीट में आता है, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, दिस इज परक्यूजिट सैलरी ऑफ हाउस होल्ड एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। तो वो टैक्स, उसको इसी चीज को हम लोग परक्यूजिट बोलते हैं। 3,600 लिखा है तो 3,600 ले लिया। देन वी हैव परक्यूजिट वैल्यू ऑफ गैस, वैल्यू ऑफ गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो परक्यूजिट वैल्यू मतलब आपका एम्प्लॉयर आपको गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके दे रहा है, तो इट इज 1,400। देन वी हैव वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो ये भी आपके लिए परक्यूजिट है, रेंट फ्री अकोमोडेशन टैक्सेबल है। $10,800. Then we have arrears. Arrears is also taxable. 14,750. Then we have overtime wages.
टैक्सेबल है 1250. Okay, now you will do what? You will take the sum total of this amount. This is called gross income from salary. This is called gross income from salary. And you know there are 3 deductions. लेकिन इस केस में सिर्फ 2 ही डिडक्शन मिलेगी. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, वैसे भी एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पे है भी. ठीक है, तो सिर्फ 2 ही डिडक्शन होती है. कौन सी 2 डिडक्शन मिलेगी इसको? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. सर इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या आएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में बेटा सब चीजें ही आती है ना. अभी हम लोग ने जितना भी डिटेल्स में पढ़ा था, क्या क्या आएगा मतलब बहुत सारे आइटम्स है. ठीक है, नोट्स के ऊपर आप देखेंगे, सिर्फ इतना याद रखना है क्या चीज टैक्सेबल है और क्या चीज टैक्सेबल नहीं है, वो ध्यान से आप लोग पढ़ लेना. ठीक है, बाकी तो पूरा लिस्ट है यहाँ पे. देख लो, ये पूरा लिस्ट है. सैलरी शुड बी ग्रॉस, फिर यहाँ से फीस, कमीशन, पेंशन, ग्रेचुटी, लीव, एन्यूटी, बोनस, अलाउंसेस, परक्यूजिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सब आएगा. उसके बाद ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे? रिडक्शन को माइनस करेंगे. तो क्वेश्चन ये बनता है क्या नहीं आएगा. ठीक है, तो क्या नहीं आएगा उसके लिए याद रखना है आपको, जगह जगह पे जैसे बोनस है डिक्लेयर्ड है तो नहीं लेना है आपको. ठीक है, तो काफ़ी सारी जगह पे एग्जेम्पशन रहेगा तो आपको माइनस करना है. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो सैलरी का पार्ट होता है. ओवर टाइम हो, एडवांस हो, अरियर्स हो, सारी चीज़ें टैक्सेबल होती हैं सैलरी में. ओके, देन वी हैव डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन. और आपको पता है थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी मैक्सिमम इट इज 50,000. ठीक है, एंड पीटी, प्रोफेशन टैक्स पेड, जितना पे किया होगा वो ले लेना है. कहीं तो दिया था मैंने देखा, हाँ, प्रोफेशन टैक्स 2500. ठीक है, सो इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस है भी नहीं और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है भी नहीं, तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, सो ग्रॉस था आपका 1,55,600, डिडक्शन है 52,500. दोनों को माइनस करके देख लो कि आपका कितना बचता है. दिस विल बी योर नेट इनकम फ्रॉम सैलरी. ओके, सो ये मैं फॉरवर्ड नहीं कर रहा क्योंकि जो फॉरवर्ड किया हुआ है इसके साथ उसका आंसर भी है. ठीक है, ओके, नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स. ये क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? मैं अगेन ये आपको फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ आंसर्स, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड किया हुआ है. आप देख सकते हैं नोट्स में है, नोट्स के नीचे क्वेश्चन के नीचे आप देखेंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. 6.3 का सोल्यूशन है यहाँ. ओके, अब डाउट नहीं है तो तीसरा क्वेश्चन लेना पड़ेगा बिकॉज टाइम बचा है काफी सारा. ओके, दिस इज द इजी वन. सैलरी शुड बी ग्रॉस, तो अब वो बताया कि ग्रॉस कैसे करना है. आपको नेट सैलरी दिया है, नेट सैलरी से ग्रॉस सैलरी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो इस क्वेश्चन में आप लोग सीखेंगे. ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6.5. Miss Sushila is employed with Messrs Alliance Engineers Private Limited. She provides you the following information for the assessment year 2021-22. ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रॉपर है एकदम. नेट सैलरी दिया है आपका 19,050,
देन इट सेज कि कुछ चीजें, नेट सैलरी है तो ऑब्वियसली कुछ चीजें डिडक्ट हुई होगी। क्या क्या डिडक्ट हुआ है? इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हुआ है, एलआईसी प्रीमिया डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हुआ इसमें से डिडक्ट हुए हैं, ये सब वापस से ऐड कर दो, आपको मिल जाएगी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल कैलकुलेट। So you are provided with net salary. Your net salary is per month 19,050. So मैं यहीं पर 19,050 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 से। 19,050 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर नेट सैलरी। तो नेट सैलरी है इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा है। तो नेट सैलरी है तो क्यों नेट है? क्योंकि कुछ तो उसमें से डिडक्ट हुआ है। जो भी चीज डिडक्ट हुआ है सब वापस से ऐड कर दो, आपकी ग्रॉस सैलरी आपको मिल जाएगी। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना है? इनकम टैक्स पर मंथ इट इज 200, 200 into 12। Then we have PT, PT कितना है? 150 पर मंथ। सॉरी, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, PT भी ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद है प्रोविडेंट फंड, वो भी डिडक्ट हुआ है तो वो भी ऐड कर दो वापस से। प्रोविडेंट फंड इज 600 पर मंथ, पर मंथ है तो वापस से इंटू 12 कर दिया। ओके, सो नेट सैलरी से ग्रॉस सैलरी के तक के जाना है हम लोगों को, तो जो भी चीज डिडक्ट हुई है वो सब वापस से ऐड कर दो। LIC कितना डिडक्ट हुआ है? 1000। ठीक है, अब ये सबको ऐड कर दो आपकी नेट सैलरी में, आपको मिल जाएगा आपकी ग्रॉस सैलरी। यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ग्रॉस सैलरी है आपकी, सबको ऐड करने के बाद मिलेगी। सो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि ये आपकी नेट सैलरी है और ये सब उसमें से डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपने ये नेट सैलरी में ये सब वापस से ऐड कर दिया तो आपको पता चलता है कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। ग्रॉस सैलरी पता चल गई। फिर उसके बाद आपके पास है क्लब फीस मेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये परक्यूजिट है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी क्लब फीस पे कर रहा है तो आपका परक्यूजिट है। क्लब फीस पेड बाय एम्प्लॉयर आपके लिए बेनिफिट है ना, तो टैक्सेबल होगा। क्लब फीस मेड बाय एम्प्लॉयर 6000। सैलरी इन लीव ऑफ लीव भी टैक्सेबल है। ओके, शी वॉज गिवन कार फॉर एक्सक्लूसिव यूज ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ओनली। उसको ऑफिस आवर्स में यूज करने के लिए कार मिला था, तो ये परक्यूजिट नहीं हो सकता। परक्यूजिट क्या होता है? जिससे आपको पर्सनल बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको कार दिया है जिसका सिर्फ आपको ऑफिशियल यूज करना है, तो आपके लिए क्या बेनिफिट है ना, तो परक्यूजिट में नहीं आएगा। परक्यूजिट में एम्प्लॉय का बेनिफिट होना चाहिए। जैसे आपके क्लब का फीस पे कर दिया तो आपको बेनिफिट होगा,
अभी आपको एक कार दिया है, बोला है कि नहीं ऑफिस के लिए ही यूज करो, आप ऑफिस के टाइम ही आपको यूज करना है, तो वो आपका परक्यूजेट नहीं होगा। हाँ, अगर आप उससे पर्सनल बेनिफिट ले रहे हैं, अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए वो कार को यूज करते हैं और वो कार किसने दिया है, आपको एम्प्लॉयर ने दिया है, तो वो क्या होगा, आपका परक्यूजेट होगा। वैसे भी कोई अमाउंट दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये वैसे भी परक्यूजेट नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ऑफिस आवर्स में कार यूज करने के लिए दिया गया था, तो वो आपकी सैलरी में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो यहीं पे आपका खत्म हो गया। तो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें से हम लोग लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। और अब तक के तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो ही डिडक्शन मिलेगी। एक है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरा है आपका पीटी। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मैक्सिमम 50,000 मिलती है, और पीटी अगर पेड है तो आपको क्वेश्चन में से देखना पड़ेगा, कहीं तो देखा था मैं पीटी यहाँ पर है, मैंने लिया था यहाँ पर पीटी, हाँ 1800 वो चाहिए था, वो ले लेना है। दो ही डिडक्शन मिलती है सिर्फ, तो टोटल डिडक्शन कितनी हो जाती है, ठीक है। दिस इज योर टोटल डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 फिक्स्ड है, ठीक है। और पीटी पेड जितना भी आपने किया है, प्रोफेशनल टैक्स पेड को ले लेना है। देन वी हैव नेट इनकम फ्रॉम सैलरी, ये आपका ग्रॉस था जिसमें से हमने डिडक्शन को माइनस कर दिया, आपको नेट इनकम यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड किया हुआ है ये यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए मैं वापस से इसको फॉरवर्ड नहीं कर रहा आपको। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? ओके, नो डाउट, नो क्वेश्चन, नो कंसर्न, नो प्रॉब्लम। चैट बॉक्स में क्या है? नो सर, ठीक है। So we will solve some question in the next lecture, and then we will wind up income from salary. See, income from salary आप लोगों ने किया है already, ठीक है, ऐसे नहीं कि you are doing something new, बट मेरा काम है, सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। एटलीस्ट हम लोग को, आपको जो इस ईयर न्यू है वो इसका टैक्स कैलकुलेशन है, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन तब तक हम लोग नहीं कर सकते जब तक हम लोग इनकम कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, ठीक है। सो वी आर कैलकुलेटिंग इनकम फर्स्ट, देन वी विल कैलकुलेट टैक्स ऑन इट, ठीक है। तो इसका टैक्स हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लोग इनकम तक चले जाते हैं। पहले सैलरी एंड करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी एंड करेंगे, वन बाय वन सारा रिविजन कर लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फाइनली उसके ऊपर टैक्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करना है, वो एक न्यू चैप्टर है जो कि तुमको एमकॉम में है। और उसके बाद पार्टनरशिप का जो टैक्सेबिलिटी होती है, इनकम कैलकुलेशन, वो भी है आपके सिलेबस में, वो न्यू है। तो ये दोनों चीज़ें न्यू है जो कि इससे पहले आपको नहीं था, बट जो था ऑलरेडी वो भी हम लोगों को पढ़ लेना है, और जो नहीं था वो तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ही, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो टैक्स कैलकुलेशन और पार्टनरशिप फॉर्म टैक्स जो इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन जो है वो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली एकदम एंड में लेंगे। बट टिल देन वी विल बी रिवाइजिंग income from salary, then house property, then capital gain, everything will be revising one by one, ठीक है। एक एक दो दो लेक्चर में, सैलरी थोड़ा सा बड़ा है इसलिए 2 लेक्चर तक के शायद चला जाएगा, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी विद इन 1 लेक्चर वो खत्म हो जाएगा। देन वी हैव कैपिटल गेन भी एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। हाँ, बिजनेस थोड़ा 1-2 लेक्चर जा सकता है तुम्हारा, तो लाइक दैट ये सारी चीजें ओवर हो जाएंगी, ठीक है। और आप लोग थोड़ा रीड कर लिया करो, रीड कर लो, यू हैव मटेरियल विथ यू, यू रीड इट, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी
Any problem, then you can ask. Anytime, no problem. So I'll stop sharing now. I'll take the attendance. Screen print. I got the attendance. Okay, then I'll stop recording.